Hey, hi everyone. Welcome back to Code Snippets and welcome back to this JavaScript tutorial. In the last lecture, we talked about conditional statements. In this lecture, we'll talk about loops in JavaScript. हम loops का बात करेंगे. So basically, suppose I ask you that print all the numbers from 1 to 5. He print all the numbers from 1 to 5. So basically, you can do something like console.log 1 and then you can write this same statement five times, right? Console.log 1, console.log 2, console.log 3, console.log 4, console.log 5, right? You can do this like this. Okay, so if I do this, I'll print all the numbers from 1 to 5. Now suppose if I ask you to print all the numbers from 1 to 200 or maybe 1 to 1000, then क्या करोगे आप? Then आप 1000 बार इस console.log लाइन को लिखोगे. So that is not actually a feasible thing, right? Writing this console.log statement 1000 times is not a feasible thing or nor is a good practice. That's where loops comes in place. So what loops are? Loops in programming languages are a feature which facilitates the execution of a set of instructions repeatedly. This time पे some conditions evaluates to true. So if we go by the book's definitions of loops, so looping in programming languages is a feature that facilitates the execution of a set of instructions or functions repeatedly while some condition evaluates to true. तो इसी को हम लोग क्या करेंगे, इसी को अगर हम लोग लूप में लिखना चाहे तो हमें कब तक प्रिंट करना होगा, हमें 1 से 5 तक प्रिंट करना है, राइट? तो we can do something like this: for let I equals to 1, I less than equals to 5, I plus plus console.log I. If we do this, we'll get the same result 1 to 5. So basically we use loop in this. So this is a for loop. Okay. So इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल लिया I. तो मेरे मेरे को कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करना था, आई हैड टू प्रिंट फ्रॉम 1 to 5. So basically my printing starts from 1. So I took a variable I that starts from 1. So let I equals to 1. That means in my first iteration the value of I will be 1. Then I am doing I less than equals to 5. Then I am doing I less than equals to 5. So basically I less than equals to 5 is the condition, is a condition which needs to evaluate to true for the code inside this loop to execute. मतलब जब तक मेरा I 5 से कम होगा, मेरा ये जो स्टेटमेंट है ये चलता रहेगा. And then I'm doing I plus plus. So in the previous lecture we also talked about unary operators, one of the previous lectures. So I plus plus मतलब this is an increment operator. So once this loop gets executed, after that loop executes, increment the value of I by 1, right? So when the first time this executes, it makes I as 1 and it prints I as 1. Then it makes the value of I as 2, right? Then it sees that this condition satisfies, so it comes inside and it prints the value of I as 2. Then it again increments it to 3. This condition satisfies, तो I का वैल्यू 3 प्रिंट करता है. फिर 3 को ये 4 कर देता है, 4 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये 4 प्रिंट करता है. फिर ये 4 को 5 करता है, 5 के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, इट प्रिंट्स 5. फिर 5 को ये 6 करता है, 6 के लिए दिस कंडीशन इज नो लॉन्गर सेटिस्फाइड, so this doesn't print this and comes out of the loop, the control comes out of the loop. Okay, so this is basically looping in JavaScript. So without loops basically हमको क्या करना होता, हमको यही statements multiple times लिखना होता. हमें अगर कोई काम बार बार करना होता तो हमें वो particular set of instructions बार बार लिखना होता. In loop we can just write it inside the loop and give the variable हमें कितना बार run करना है, and then that set of instructions will run that many times. Okay, so there are इन जावास्क्रिप्ट देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ लूप्स. तीन तरह के लूप होते हैं, ठीक है? एक होते हैं फॉर लूप, एक होते हैं व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप.
ठीक है, तो हमने अभी जो करा है वो फॉर लूप है। ठीक है, तो फॉर लूप का हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप का अगर मैं सिंटैक्स बोलूं, फॉर लूप का अगर मैं तुमको सिंटैक्स बोलूं, तो फॉर लूप में तीन, यू कैन सी देयर आर थ्री पैरामीटर्स आई हैव टेकन इनसाइड द फॉर लूप, राइट। सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन। ओके, फॉर लूप में जो होता है सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन, कि मैं इनिशियलाइज कर रहा हूं, आई एम इनिशियलाइजिंग समथिंग। ओके, आई एम इनिशियलाइजिंग समथिंग। सबसे पहले होता है इनिशियलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, देन क्या होता है, तो लेट आई इक्वल्स टू जीरो इज माई इनिशियलाइजेशन कंडीशन। देन होता है टेस्टिंग कंडीशन। देन होता है टेस्टिंग कंडीशन, कि मेरा जो लूप चल रहा है वो इस कंडीशन को पास करता है कि नहीं, तभी ये लूप के अंदर जाएगा। मैं पहले इनिशियलाइज कर दिया फॉर द फर्स्ट आइटरेशन, देन फॉर द कंसेक्यूटिव आइटरेशंस माय टेस्टिंग कंडीशन विल बी चेक्ड। ओके, एंड देन मैं क्या यूज करता हूँ, देन मैं यूज करता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, एंड देन इसके अंदर आई राइट माई बॉडी, जो भी मेरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है दैट आई पास। ठीक है, दिस इज हाउ बेसिकली फॉर लूप्स वर्क। ठीक है, मैं एक इनिशियलाइजेशन कंडीशन देता हूँ जो फर्स्ट आइटरेशन में काम आता है, कि इन द फर्स्ट आइटरेशन दैट विल बी द वैल्यू पिक्ड। इन माय केस मैंने आई इक्वल्स टू वन को इनिशियलाइज करा है। ठीक है, देन मैंने करा है आई लेस देन इक्वल्स टू फाइव, तो वो हो गया टेस्टिंग कंडीशन। तो हर बार जब ये लूप चलेगा, लूप के अंदर आने से पहले ये आई का वैल्यू चेक करेगा कि ये फाइव से छोटा है कि नहीं। If it is true, then it will only execute the statement. And then I have used an increment operator which is I plus plus. तो एक बार लूप चल जाने के बाद दूसरी बार लूप चलने के पहले आई का वैल्यू वन से इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, अच्छा, अब जैसे ही वो जो टेस्टिंग कंडीशन है वो फॉल्स बन जाता है, तब क्या होता है, तब वो लूप एंड हो जाता है, जो कोड का कंट्रोल है वो लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, दिस इज हाउ फॉर लूप्स वर्क। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मान लो तुम्हारे पास, यू हैव टू प्रिंट द नंबर टेबल ऑफ टू टिल टेन, मतलब टू इंटू टेन तक तुम्हें प्रिंट करना है। तो टू इंटू टेन तक अगर मुझे प्रिंट करना है, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे टू इंटू वन करना है, टू इंटू टू करना है, टू इंटू थ्री करना है, टू इंटू फोर करना है, ऐसे कर करके टू इंटू टेन तक करना है, राइट। ऐसे कर करके टू इंटू टेन तक करना है। तो अगर मैं ये पूरा इन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में देखूं, द वेरिएबल पार्ट इज दिस टू इंटू आई, राइट। इसको अगर मैं, इफ आई वांट टू राइट दिस एंटायर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ जनरलाइज्ड फॉर्म, आई बेसिकली नीड टू गिव टू इंटू आई, where where my I should be less than equals to 10. Okay, I should be less than equals to 10, and I should start from 1, right। तो इसी को अगर हम लोग लूप में लिखना चाहे, तो कैसे लिख सकते हैं, फॉर लेट आई इक्वल्स टू वन, मैंने आई को वन पे इनिशियलाइज कर दिया, देन आई डिड आई लेस देन इक्वल्स टू टेन, देन आई डिड आई प्लस प्लस, एंड देन आई एम डूइंग कंसोल डॉट लॉग टू इंटू आई, right, then I am doing 2 into I. So if you see 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, okay, so this is a set of instructions जिसमें मुझे 2 का नंबर टेबल प्रिंट करना था। तो मैंने i 1 से 10 तक ले लिया और हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आई कैन ऑल्सो यूज फॉर लूप्स फॉर आइटरेशंस। ओके, मान लो मेरे पास एक एरे है, सपोज आई हैव एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओके, समथिंग एज वेर एरे equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4। ठीक है, so I can do something as for let I equals to 0। so basically indexing in array starts from 0। when we will talk about array, we'll talk about this। array का index 0 से start होता है, so this is the 0th index, not the first index।
दीज आर ऑल इंडेक्सेस, मतलब बेसिकली पोजीशंस, कि कौन से पोजीशन पे इस एरे में कौन सा वैल्यू है। तो एरे का जो पोजीशनिंग है, एरे का जो इंडेक्स है, वो जीरो से स्टार्ट होता है इन ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो मुझे एरे को आइटरेट करना है, आई हैव टू गो थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। सो बेसिकली आई विल स्टार्ट फ्रॉम द जीरोथ पोजीशन ऑफ द एरे, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग आई इक्वल्स टू जीरो। एंड मुझे कहाँ तक चलना चाहिए, आई का वैल्यू मुझे कहाँ तक होना चाहिए। तो ये जो एरे का लेंथ है, ये एरे का लेंथ क्या है, एरे का लेंथ है 4। तो अगर एरे का लेंथ 4 है और पहला पोजीशन 0 है, तो ये आखिरी पोजीशन क्या होगा, 3, because this will be 0th position, this will be first position, this will be second position, this will be third position, right? तो या तो आप i लेस देन इक्वल्स टू 3 लिख सकते हो, नहीं तो आप i लेस देन 4 लिख सकते हो, ठीक है। एंड देन यू डू समथिंग एज i प्लस प्लस, ओके, एंड देन you do again console.log array at I. So you basically access the elements of array using this array square brackets and then I. Okay, that is how you access. इसको comment out करते हैं, and if you do see this, it is 1 2 3 4. सो यहाँ पे जो कंडीशन मैंने लिया है, क्या मैंने आई इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट करा है, मैंने एरे का जो लेंथ है, एरे का लेंथ 4 है, तो इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे इज ऑलवेज एरे डॉट लेंथ माइनस 1, ठीक है। ये अभी बस याद रखो, हम जब एरे करेंगे तब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एरे इज ऑलवेज एरे डॉट लेंथ माइनस 1, क्योंकि एरे का जो पोजिशनिंग है वो जीरो से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 के जगह ना, देर इज एन इनबिल्ट फंक्शन फॉर एरेज विच इज एरे डॉट लेंथ, हम ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, तब भी ये चलेगा। तब मैं अगर इसको, if I add some more elements in the array, I do not need to go and change this value, this testing condition again, it will automatically pick up, okay. So these are how for loops work, these are how basic for loops in JavaScript works, okay. There are some, so there are some other loops as well in JavaScript considering for, जैसे कि for let off and for let in. We will learn about these loops when you're talking about arrays and objects, okay. Now let's come to one more loop, which is while loop, okay. So while loop is basically, while loop is a similar kind of loop like for loop, इसका थोड़ा syntax difference है। What is the syntax of while loop? While loop is, while loop takes only one condition, while condition, and then if the condition is true, then it runs this set of instructions. So for loop में क्या था, एक initialization condition था, एक टेस्टिंग कंडीशन था, एक इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर था, एंड देन एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस था। वाइल लूप में ऐसा नहीं है, वाइल लूप में आप बस उस टेस्टिंग कंडीशन को पास करते हो, एंड इफ दैट कंडीशन इज ट्रू देन आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पास करते हो। तो अगर मुझे ये सेम आई, इफ आई वांटेड टू प्रिंट दिस 1 to 5 यूजिंग वाइल लूप, मैं इसको कैसे करता। सो सबसे पहले तो देखो, वाइल लूप के अंदर मैं कोई कुछ इनिशियलाइज कर नहीं रहा हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं तो आई का वैल्यू इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो आई विल इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ आई आउटसाइड द वाइल लूप, देन मुझे कंडीशन लिखना है वाइल लूप के अंदर, राइट। सो व्हाट इज माय कंडीशन, आई एम वांटिंग टू प्रिंट टिल 5 और टिल 10, सो आई विल डू आई लेस देन इक्वल्स टू 5, okay, and I will do console.log I, right. So now if I do this, will this work? If I do this, if you see, this keeps on printing 1 1 1 1 1 1 1 1 1. Why? Because because it keeps on printing this, it basically goes on in an infinite loop, क्योंकि ये लूप से कभी बाहर आता ही नहीं है। इनफाइनाइट लूप क्या होता है, इनफाइनाइट लूप इज समथिंग जब आपका जो कंट्रोल ऑफ द कोड है वो कभी आपके लूप से बाहर ही नहीं आ रहा है, और बेसिकली इनफाइनाइटली दैट लूप इज कीपिंग ऑन रनिंग, मतलब ये जो कंडीशन है ये कभी फेल हो ही नहीं रहा है, विच विल अल्टीमेटली कैन ब्रेक योर प्रोग्राम एंड कैन ऑल्सो लीड टू मेमोरी ओवरफ्लो, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्यों नहीं हुआ, ये कंडीशन फिक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट तो लिख दिया है, तो मेरा जब पहला बार i इक्वल्स टू 1 है, दिस स्टेटमेंट गॉट सेटिस्फाइड and this got printed 1, then when
it again comes to check this statement. This is again satisfied because it is still 1. So to fix this, we need to do something as I equals to I plus 1, or you can do I plus plus. So we need to increment our I inside this statement set of instructions inside the while loop only. If we do this, then we will see 1 2 3 4 5. ओके मतलब while लूप के अंदर के स्टेटमेंट्स में ही आपको अपने जो वेरिएबल है उस वैल्यू को आगे इंक्रीज करना है, बढ़ाना है. फॉर लूप में जैसे हम इनिशियली पास कर देते थे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, while लूप में आपको वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स के साथ ही वो करना होगा. ओके क्योंकि while लूप बस टेस्टिंग कंडीशन को ही लेता है. ठीक है. Which loop you want to use where? It's completely based on your own choice. You can use while loops whenever you want to use while loops. You can use for loops if you want to use for loops. You can work with both the loops according to your own wish. Okay. Now let's talk about one more loop in JavaScript which is called as do while loop. Okay. So do while loop is there is a there it is a little different from for loops and while loops. Okay. फॉर लूप्स एंड व्हाइल लूप्स में क्या था कि सपोज इफ आई डू समथिंग एज यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट आई इक्वल्स टू 10. ओके लेट आई इक्वल्स टू 10. नाउ इफ आई रन दिस, if you see this set of instructions is not working, is not like the code is not executing inside this while block even at least once. क्यों? क्योंकि मैंने i का वैल्यू 10 लिया था एंड मैंने टेस्टिंग कंडीशन क्या है i लेस देन इक्वल्स टू 5 है. तो पहली बार में ही ये कंडीशन वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड दिस कोड ब्लॉक वाज नॉट एग्जीक्यूटेड. विथ डू व्हाइल लूप्स, डू व्हाइल लूप्स आर रिटन समथिंग लाइक दिस कि डू समथिंग डू समथिंग डू समथिंग while my condition is true. Do something while my condition is true. That is how do while loops are written. तो अगर मैं यहाँ पे लिखता कि do console.log I while I is less than equals to 5. देखो मेरा कंडीशन तो है कि I लेस देन इक्वल्स टू 5. ठीक है, और मैं I का वैल्यू पास 10 ही कर रहा हूँ. आई एम पासिंग द वैल्यू ऑफ I एज 10 only, right? Now if I run this, you see this value of I is at least printed once. आगे जाके प्रिंट नहीं हो रहा है, बट पहला जो वैल्यू है 10 दैट इज गेटिंग प्रिंटेड. सो डू वाइल लूप में क्या है ना, डू वाइल लूप में the set of instructions that you are passing or this something that you want to do, this will at least be executed once before the condition is checked. Before the condition is checked it will at least be executed once. इसको मैं अगर 4 कर देता ना, इसको अगर मैं 4 कर देता, इसको 5 करते हैं. ठीक है, इसको 5 करते हैं, देखो क्या होता है. तब भी एक ही बार चल रहा है, तब भी ये एक ही बार चल रहा है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 हो रहा है, 5 प्लस 1 6 हो रहा है, फिर ये कंडीशन को चेक कर रहा है, फॉल्स हो जा रहा है, फिर ये कुछ नहीं कर रहा है. ठीक है, बट इसको मैं अगर 10 कर रहा हूँ या फिर इसको मैं पहला पहला जो इनिशियलाइजेशन है वही कंडीशन ब्रेक है, फिर भी इट इज at least executing once because first time in the first iteration it does something and then it checks the condition. Okay, so in do while loop the basic difference is कि whatever set of instructions that you are writing should at least execute once given whatever condition you have given. बाकी जो इसके concepts है कि the loop will terminate if the condition becomes false, ये सब same है. The only important thing is again I am saying that the do while loop will execute its statements at least once before any condition is checked. तो इस तरह के जो लूप्स है ना इनको कहते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप. एग्जिट कंट्रोल्ड लूप क्योंकि क्योंकि इनका जो कंडीशंस चेक हो रहा है ये व्हेन द लूप इज एग्जिटिंग तब चेक हो रहा है. दैट इज व्हाई इट इज एटलीस्ट वर्किंग वंस, क्योंकि ये जब लूप से एग्जिट हो रहा है तब ये चेक कर रहा है. एंड ये जो फॉर लूप्स है, ये जो वाइल लूप्स है, दीज आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप्स. दीज आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप्स. व्हाई? बिकॉज
इनके जो कंडीशंस है, इनके जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ये पहले कंडीशन चेक होता है, ड्यूरिंग एंट्री ये कंडीशंस चेक होता है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एंट्री कंट्रोल लूप्स. Okay, so these are all about loops in JavaScript. I hope you understand the concepts. Practice it. Try to understand. Write. Try to use for loops. Try to write something using while loops. Try to print different kind of statements using for loops and while loops. And that's it for this lecture. I'll see you in the next one. Thank you. Bye bye.